think is the USP of our film. We've tried to compile never seen before action for you. I just hope that staying fit, going out there and being prepared for life is an important aspect. So I just hope that this song works for people who need that. Yeah? We'll play the AV? Yeah? Whoever wants to start something, it doesn't only have to be the martial art, it has anything, any new venture, any new fine art, any new expression, any youth or any adult or anybody who would like to start something, help spark that initiation in each one of you. And it's a very special song. I'm very thankful to Sabir to cut such a beautiful song. It shows the growth and the chemical cycles. It shows the training montage. It shows, the two rebels going through a training and getting better at something. And would you like to add something? जब मैंने इस वीडियो को देखा मैं ऑलमोस्ट सोफे से गिर गई. आई स्टिल कांट बिलीव इट कि हमारी हिंदी फिल्मों में पहली बार एक एक्टर आए हैं जो इस किस्म का एक्शन कर सकते हैं. आई थिंक कि बहुत बहुत गर्व की बात है कि पहली बार हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा एक्टर है जो एक्शन के लेवल को इतनी ऊंचाई तक लेके जा रहा है. बहुत बहुत बड़े गर्व की बात है. आई थिंक कि नॉट ओनली हिज पेरेंट्स बट एवरीबडी इज रियली रियली प्राउड ऑफ यू टाइगर. एंड मैंने भी थोड़ा बहुत अटेम्प्ट किया है. तो आई मीन वट एवर हैड टू बी सेड साबिर सर और टाइगर ने कह दिया है. बहुत ही मोटिवेशनल गाना है, गेट रेडी टू फाइट. उम्मीद है कि लोग इंस्पायर्ड हो जाएंगे. मैं हमेशा इंस्पायर होती हूँ जब मैं टाइगर को देखती हूँ, एवरी सिंगल टाइम. एंड आई जस्ट होप दैट एवरीबॉडी आल्सो कीप्स गेटिंग इंस्पायर्ड. We'd like to answer any questions if you have. Yeah. Yeah, absolutely. You hit the nail here. I think this is definitely my favorite track, or one of my favorite tracks from Baghi. I'm a very physical person. I love things that motivate me, and this song is definitely going to serve as a motivation throughout my life, I think. It's something that we're hoping will last beyond the film. And just for, like I said earlier, and like Sabir sir had mentioned, and like Shraddha had mentioned, if it can, serve as a source of inspiration for those who'd like to start. मुझे डेडिकेट कर सकते हैं ये सॉन्ग? Why? But I want this song to be dedicated. Please, Tiger. Of course, I dedicate to Shraddha. Halanki Shraddha doesn't need it because she's already dedicated, to her art and to her work. But I dedicate it to the youth of our country who want to, get fit and who want to express themselves in some way or the other. So yeah. अभी सिंस मैंने खुद टाइगर का डेडिकेशन ले लिया है, बट आई थिंक टाइगर सेड अ वेरी गुड थिंग टू डेडिकेटेड हमारे कंट्री के यूथ को. हम सबको एक्चुअली टू ऑल ऑफ यू गाइज हियर ऑल्सो, हम सबको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है. एंड हियर्स होपिंग कि ये गाना जो है सबका नया मोटिवेशन सॉन्ग बन जाए. जी मैं ऋतिक रोशन जी को बहुत मानता हूँ. I'm lucky to be in the same industry as him, and I seek inspiration from him no matter whatever I do. I think on screen and off screen he's a very hard working person. Acting से लेकर action, body language, dancing, वो जो भी करते हर मतलब बहुत शिद्दत से करते, बहुत मेहनत करते हर चीज़ को लेकर. I think he really
pushes himself, pushes his extreme in each facet of the craft. So I really respect that man for that. Yeah. Who is my idol? मैं definitely I have always been a huge Hrithik Roshan fan also, but I've also हमेशा से मैं एक प्रियंका चोपड़ा fan भी रही हूँ, और I feel कि जो काम उन्होंने किया है वो consistently अपने आप को prove करती आ रही हैं, तो I would say प्रियंका चोपड़ा. जी कभी मौका नहीं मिला उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारने के लिए, पर आई एम श्योर इफ़ आई मीट द मैन यू नो आई बी ऑस्ट्रक. मैं बड़ा फ़ैन हूँ उनका, पर आई डोंट थिंक आई हैव हैड द चांस ऑफ गेटिंग एनी टिप्स फ्रॉम हिम सर. जैसे मैंने कहा, मैं ऋतिक रोशन जी को बहुत मानता हूँ. उनसे कई बार मुलाकात हुई और मुझे मौका मिला उनसे काफ़ी टिप्स लेने इस मामले में, बॉडी बिल्डिंग में, फिटनेस में. वी इंडोर्स द सेम ब्रांड टुगेदर कॉल्ड HRX. तो उसे लेकर हम यू नो इट रिवॉल्व्स अराउंड फिटनेस एंड जस्ट बेसिकली empowering the youth of our country to be fit. So yeah. बिल्कुल, उन्होंने मेरे डैड के साथ फिल्में की हैं, तो तब से आज तक मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. दैट्स बट ऑब्वियस. और वो यू नो द वे दैट उन्होंने अपना नाम बनाया है वो बहुत इंस्पायरिंग है. नो वंडर ही हैज़ crores and crores of fans. Thank you. आई थिंक जितने लोग ये कोशिश कर रहे हैं इस टाइप की फिल्में बनाना और ऑडियंस को देना, ये अच्छी बात है. एक्शन भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इमोशन है. बहुत मेहनत लगती है एक अच्छी एक्शन फिल्म ऑडियंस तक पहुंचाने की. हमने बहुत कोशिश की है, पूरी मेहनत की है, बहुत कोशिश की है कि हम एक अलग फिल्म बनाएं. जब से हमने ये फिल्म शुरू की, हमें एक चीज़ पता थी कि कोई गाड़ी एक्सप्लोड नहीं हो रही है, कोई गन फायर नहीं है, रॉनी और सिया दोनों कोई वेपन यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये खुद लड़ रहे हैं. शायद थोड़ी सी आपको देखने को मिला होगा. तो हम उस मामले में कोशिश कर रहे हैं कि पुश करें और ऑडियंस को एक बहुत ही बेहतरीन एक्शन फिल्म दें. कुल मिला के इट्स जस्ट हम खाली दोनों कैरेक्टर्स के तेवर दिखा रहे हैं इसमें जी. हालांकि कोई रिलेशन नहीं है. यू राइट. इट्स जस्ट वी आर शोइंग द एटीट्यूड ऑफ द कैरेक्टर्स. इस फिल्म में एक्चुअली मैंने जितना मुझसे हो पाया एक्शन, जितने कम समय में ट्रेनिंग समय मिला उतना कर पाई. कुछ सीन्स है मेरे एक्शन के एंड बट डेफिनेटली उसे आप बिल्कुल भी नहीं कंपेयर कर सकते टू टाइगर. बहुत चैलेंजिंग था एंड बहुत अच्छा लगा कि दोबारा एक फिल्म में कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिला. ऑल थैंक्स टू साबिर सर. उनका बिलीफ था. मैं बहुत डरी हुई थी, मुझे पता नहीं था कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं इतने कम समय में, बट ऑल थैंक्स टू हिम एंड हिज फेथ. जब आप में कोई ऐसे बिलीव करता है देन इट्स रियली नाइस टू हैव दैट. और मेरे
फेवरेट एक्शन हीरो ऑब्वियसली मेरे राइट पे बैठे हैं, मिस्टर टाइगर श्रॉफ. आई थिंक वो हम सबके फेवरेट. नोबडी कैन डू एक्शन लाइक हिम. Yes, sir. Throughout this film, it was a very physically demanding role. That being said, हम एक अलग किस्म के एक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे लेकर काफ़ी मुश्किल स्टंट्स भी थे इसमें. हालांकि वर्कशॉप्स बहुत हो चुके, ट्रेनिंग तैयारी बहुत की है हमने इस मूवी के लिए, इस किरदार के लिए. तो उसे लेकर आई थिंक आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स कमिंग माई वे. हालांकि वो डर हमेशा रहता था मुझ में हर स्टंट करने से पहले, लेकिन वो डर से मुझे ताकत मिलती थी. एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट फियर आई यूज्ड टू परफॉर्म बेटर. सॉरी सर. आई थिंक काफ़ी बिंदास आदमी है, एज यू ऑल नो. तो हाँ, एग्जैक्टली. तो इस मामले में भी ही नोज़ कि उनको पता है मैं बहुत मेहनत करता हूँ, तो ही नोज़ आई एम रेडी फॉर दीज थिंग्स. इट्स ओके. जी बिल्कुल, गुड ऑब्जर्वेशन. बोल तो दिया सर. उतना ही बोलना था. क्या बताऊं. ये राम जैसे लगते हैं, इसी के लिए इनको कास्ट किया. सर ये मेरी दूसरी पिक्चर है, तो आई थिंक पता नहीं यार. आई थिंक इट्स माय सेकंड फिल्म. किस्मत अच्छी है मेरी कि मुझे ऐसे किरदार मिल रहे हैं, और मुझे एक अलग पहचान बनाना है इंडस्ट्री में. इतना सारा कंपटीशन है, तो मैं मुझ में खासियत क्या है, मैं अलग कैसे हूँ भीड़ से. तो बस पहले एक बार वो साबित कर लूँ, उसके बाद मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगा सर. यस सर. जैसे कि हर प्रॉब्लम है. जहां पे एक्शन चल रहा है वो सिर्फ एक ही जगह पे है, और वो है बागी, जो 29 अप्रैल को रिलीज हो रही है, और कहीं पे इस किस्म का एक्शन नहीं चल रहा. सर दैट्स नॉट माय बिजनेस. मेरा बिजनेस नहीं है. सॉरी. आई मैं बताऊं, जो मेरे राइट पे बैठे हैं वो वही. आई फील बहुत ही कमाल के डांसर है, बहुत ही कमाल की एक्शन करते हैं. ही इज जस्ट अमेजिंग. जी मैं आई लाइक टू डिफर फ्रॉम दैट. इसमें एक गाना है लेट्स टॉक अबाउट लव करके. सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, और हम सेम स्कूल में भी थे. तो जहाँ तक मुझे याद है, आपको शायद पता भी होगा, मस्ट हैव टोल्ड यू ऑल दिस इन प्रीवियस इंटरव्यूज, बट श्रद्धा हमेशा जीती थी हर कंपटीशन में, हर टैलेंट शो, हर डांस कंपटीशन. सिर्फ बचपन में मैं इनको हराती और थी. एक किस्सा भी बताता हूँ अभी इसके बारे में. तो हमारा एक स्कूल का एक एनुअल डे था, और मैं एक पल का जीना गाना पे नाचने वाला था, और उस वक्त श्रद्धा ने मुझे कोरियोग्राफ किया. तो शी इज बेसिकली टॉट मी हाउ टू डांस ऑल्सो. तो व्हाटएवर क्रेडिट इज यू नो फॉर श्रद्धा. एंड देयर इज अ सॉन्ग लेट्स टॉक अबाउट लव. अगर आपने देखा इस मूवी की, लेट्स टॉक अबाउट लव. माइक चेक. ठीक है. ओके. तो श्रद्धा कपूर ने हील्स में नाची, ठीक है, और उसमें एक टर्न टेबल पे था.
तो she was dancing on heels on a turntable and she was matching up to me. ठीक है, मुझे लगा कि I was doing a good job क्योंकि मैं सूट में नाच रहा हूँ ये वो वगैरह. So I thought it was difficult for me, but she was in a dress, she was in heels. So I have to give her credit. She's not only matched me, she's surpassed me, and she's doing a superb job. So big hand for Shraddha Kapoor. I think please. बहुत sweet. He is very बहुत ये हमेशा मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही अच्छा बोलते हैं, and it makes me feel really really nice. He's really too sweet. हकीकत है तो. I really mean it. I really mean it. हकीकत है सर, अभी तो हम तीनों ने स्टार्ट किया है और कोशिश ये है कि बागी 2 भी बने एक दिन. उम्मीद तो है. इफ यू गाइस लाइक दिस. It's not a promotional song. It is the theme of our film. It's used throughout the film, and there was no strategy to sort of use a promotional song because we really felt for this song, we wanted it to come out and have the youngsters listen to it or anybody listen to it and probably get motivated like we did during the making. जितना भी मुझसे हो सके, हम सबके पास एक लाइफ है, तो जितना हम आई फील कि जितना मैं अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकूं उतना कोशिश करूंगी. हार्ड वर्क करती रहूंगी एंड डेफिनेटली जो ऑडियंस का प्यार मिलता है, दैट्स ऑल आई एम देयर फॉर. So that's all that I always want. He is unique. I think Shraddha or Tiger can say more about. यार सर, मैं मजदूर आदमी हूँ. आई रियली लाइक टू वर्क हार्ड एट एवरीथिंग. इतने सारे टैलेंटेड एक्टर्स हैं, मेरे जो कंटेम्प्रेरीज है, मेरे जो सीनियर्स है, यू नो आई सी कंस्पिरेशन फ्रॉम ईच वन ऑफ देम. मुझे बस एक ही चीज़ पता है कि अगर मुझे एक पहचान बनाना है मुझे, तो आई हैव टू ट्राई एंड you know stand out a bit. I'm not saying stand up, I'm saying stand out and try and be a little different so people notice my hard work. उसे लेकर मैं you know I was blessed with you know I had a strong base in martial arts, and since Akshay Kumar ji had already started this trend, you know I thought maybe people will accept me if I come and show a little bit of martial art in this film. So and in Heropanti as well. And luckily I was accepted for my action and a little bit for my dancing as well. No, yeah, I'm an actor, so I'm open to all kinds of films. Right now I'm getting mainly action films, so I'll take what I get. मैं choosy आदमी नहीं हूँ sir. जी, last question. Actually नहीं, मतलब इसके लिए हमने मेहनत की थी. ये पूरी कोशिश थी हमारी तरफ से कि लोगों को ये पसंद आए, इसलिए शायद थोड़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, बट नहीं, ठीक लग रहा है. One last thing. I'm very sorry I forgot. Before we close this, no song is complete without the person who actually composed it. ये नए लड़के हैं जिन्होंने ये गाना कंपोज किया है. He's sitting right here amongst friend of mine. He's from Advert. Please come guys. Say something? Sure. Thank you. Thank you. April, भूलना मत.